10. Today we are starting with the new chapter, that is study of compounds. For in this we are covering hydrogen chloride gas point, and this is the first chapter for this part, and we'll see about the hydrogen chloride gas also, and even hydrochloric acid. Both the things are there, but we'll first of all start with the gas part. And you know the formula for hydrogen chloride gas is HCl, right? So the point is that there is I'm just giving you a small introduction for it, that hydrogen chloride was known earlier in 800 AD, and Globers in 1648 prepared it by heating a mixture of rock salt and concentrated sulfuric acid. Then Joseph Priestley also came, and he also obtained it from sea salts, and that's why the name was also known as marine acid to it. But we are not going towards the introductory part of this chapter, because introduction of different scientists and how it is prepared is not required. The main point we'll focus on the parts like preparation ones, but still I'm giving you an introduction, like if you see where it occurs, it's occurred in free states, in the volcanic gases also. It is also present in your gastric juice of mammals, including the human beings. So these are the small introduction of this thing of your HCl acid. And the point is that because this gas na later on changes to acid, तो आप उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हो, तब आप देखते हो. तो ये बेसिकली उनकी प्रिपरेशन है, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना है. बट मेन कॉन्सेप्ट इज़ we have to see the preparation part. So we'll see the first part of it, that is the lab method or the lab preparation, how your HCl gas is being prepared. So we'll focus on it. So the lab method we'll see, and the one of the most convenient method that is being used for the preparation of HCl gas is we use any of the metallic chloride, है ना. आप कोई भी metallic chloride आप use कर सकते हो. Metallic chloride you can use, and along with that you can use any acid, say concentrated sulfuric acid. ठीक है, these things. So metallic chloride में you can use any of the part. NaCl आप use कर सकते हो, KCl use कर सकते हो, but हम लोग जो use करेंगे, we are using NaCl, sodium chloride, which is also known as rock salt. So this thing you have to keep it. Now these two things are what your reactant part, है ना. So we use these things. So let's see the reactants. Any of them you can use. You can use over here any of the metallic chloride. So हमने NaCl use करा है, क्योंकि in our course we have NaCl. We can use other also, KCl वगैरह भी होते हैं, but we are not using that. But we will see this how it is being formed. The point is that this NaCl, this reacts with your sulfuric acid, and that is your concentrated sulfuric acid, you will see. So there are two ways of representing the reaction. So when this particular thing is been there, it go for heating part, it gives you a salt, and HCl gas is been there, है ना. अब ये हम जनरल देख रहे हैं. अब यहाँ हम तो ऑलरेडी हैव रिटन ना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सो सॉल्ट. अब बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के सॉल्ट बनते हैं. पहली कैटेगरी होती है नॉर्मल सॉल्ट की, and second category is your acid salt. So two types of salt is being obtained when this reaction takes place. Now let's focus on it, when you will get the normal salt, when you get the acid salt. तो अब सबसे पहले आप देखिए NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो हीट दिया रखा है, ये आपको एक ही रिएक्टेंट्स हैं दोनों, और ये दोनों रिएक्टेंट्स में, लेकिन आपको सॉल्ट जो मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है. एक जगह नॉर्मल सॉल्ट एंड अदर केस आपको ऐसे. वाई? सो इट मीन्स टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो सेम है, दोनों जगह यही आउटकम्स हैं. तो टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गई है. तो दो कंडीशन आती है. एक जगह हो जाता है व्हेन टेम्परेचर इज़ more than 200, और दूसरी जगह होता है less than or equal to 200. So let's focus on the first part, when your temperature is more than 200 डिग्री सेंटीग्रेड. उस कंडीशन पे आपको मिलता है नॉर्मल सॉल्ट. जब मोर देन 200 होगा तो नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा, और HCl गैस आपको मिलेगी. ठीक है. नाउ लेट्स सी, अब हम नॉर्मल सॉल्ट का कंडीशन क्या हुआ, लेट्स फोकस ऑन इट. ये तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी दिया. अब हम रिएक्शंस पे फोकस करेंगे. सल्फ्यूरिक एसिड,
टेम्परेचर मोर देन 200। अब देखो एक जनरल आइडिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यू नो हाउ टू मेक द फॉर्मुलेस। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले से कंबाइन करेगा, है ना। मैंने डॉट लगा दी है, आप मत लगाइएगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट बनाएगा और HCl। अब बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये यहाँ पे आपके 2 हैं, पुट 2 ओवर हियर, यहाँ Cl2 हो गया तो पुट 2 ओवर हियर। ये पहली कंडीशन है जब आपका नॉर्मल सॉल्ट बनता है। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये आई। सेकंड कंडीशन आपकी आती है, टेम्परेचर आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द फैक्टर। व्हेन टेम्परेचर इज़ लेस देन 200 और इक्वल टू 200, तो उस कंडीशन में आपको एसिड सॉल्ट मिलेगा और साथ में HCl गैस तो अभी भी मिलेगी। नाउ लेट्स सी क्या कंडीशन है। NaCl सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया, लेस देन और इक्वल टू 200, एसिड सॉल्ट क्या हो गया NaHSO4। यही तो है कि एक ही हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस करेगा, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा ना हाइड्रोजन एटम का, और HCl। So it is already I think balanced, so there is no need to balance this particular equation. So this thing is been there। ये आपकी गैस कंडीशन आ जाती है, यहाँ पे भी आप G लिख लीजिए गैस से, क्योंकि रिएक्शंस ऐसी दी रहती हैं। This way you can learn your reaction. Now this is a general way of we are only focusing on the reaction part, but it is not like that. You have to focus on the lab method का डायग्राम भी है इसमें, और इसमें there are many questions that come. So let's focus on the lab diagram. Now see the diagram. This is from the other book, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड्स में कहीं से भी कोई भी डायग्राम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है आपकी ग्राफ से आए। तो ये एक दूसरी बुक है जहाँ से हमने ये डायग्राम लिया रखा है। सो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इट इज़ कनेक्टेड टू द थिसल फनल। ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है, नीचे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ चुका है। NaCl जो आपका रॉक सॉल्ट है, ठीक है, जो आपने लिया रखा है। नीचे बर्नर लगा है क्योंकि टेम्परेचर मस्ट है। ये आपका फ्लास्क है जिसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया रखा है। इट इज़ बीन कनेक्टेड टू योर HCl, मतलब टू द ग्लास जार जहाँ पे HCl गैस आपकी कनेक्ट हो जाती है। नाउ द रिएक्शन गोज़ लाइक दिस। आपने दोनों जो रिएक्टेंट जब डाले, नीचे से टेम्परेचर आप मेंटेन करोगे। अगर आप लेस देन या इक्वल टू 200 लोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, आपको एसिड सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और गैस जो है HCl जो गैस है वो यहाँ से यहाँ पास होगी। ये जो एरो शो कर रहा है कि यहाँ से HCl गैस जो है वो पास हो रही है, लेकिन बट द पॉइंट इज़ दैट द HCl गैस विच यू आर सीइंग ओवर हियर इट विल कंटेन मॉइस्चर ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये मॉइस्चर भी कंटेन करती है, तो इसीलिए आपको क्या होता है भाई, ये रिएक्टेंट है, यहाँ देखो कहीं ना कहीं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल ही जाएगा भाई। कंटेनर में ही हो, कोई वैक्यूम प्रूफ थोड़ी कर रहे हो आप, तो अंदर कंटेनर में ही मॉइस्चर हो तो वो वाटर, ये HCl गैस जो है वो ड्राई कंडीशन में नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर HCl में होगा, दैट विल बी पास टू दिस कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका काम क्या है, इट एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट हो गया। ड्राइंग एजेंट समझते हो ना, जो रिमूव करता है मॉइस्चर को गैस से। तो ये जो गैस तुम्हारी आ रही है वो खाली अकेली नहीं है, इसके साथ क्या है, तुम्हारा मॉइस्चर भी है। इट ऑल्सो कंटेन मॉइस्चर पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएगा कंटेनर के अंदर तो ये दोनों साथ आएंगी। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होगा, वो ड्राइंग एजेंट है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से जब ये बाहर निकलेगी गैस तो ये यहाँ पर आपको ड्राई HCl गैस मिलेगी। तो ये एक प्रोसीजर है जिससे ये चलता है। अब वही डिपेंड कर रहा है बेटा, यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी। अगर टेम्परेचर आप लेस देन 200 या इक्वल टू 200 लोगे तो यहाँ एसिड सॉल्ट बनेगा। अगर आप टेम्परेचर मोर देन 200 लोगे तो आपका सोडियम जो है सल्फेट बनेगा, जो कि आपका एक नॉर्मल सॉल्ट होगा। अब यहाँ बहुत से क्वेश्चन आते हैं। द क्वेश्चंस, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई वी प्रेफर NaCl। भाई कोई भी मेटालिक क्लोराइड ले सकते थे, KCl ले लेते, कैल्शियम क्लोराइड ले लेते, NaCl ही क्यों चूज़ करा आपने, वाई यू आर यूजिंग NaCl हो गया। द पॉइंट इज़ दैट रिगार्डिंग NaCl इसलिए प्रेफर करा जाता है क्योंकि वो बहुत चीप होता है। इट इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल, मतलब सस्ता है और आसानी से मिल जाता है, नमक कहीं पे भी मिल जाएगा तुम्हें। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रेफर NaCl because of it's being cheap and can be easily available. Second point arises concentrated sulfuric acid. You are using concentrated sulfuric acid as a drying agent. ये आपने यूज़ करा ना यहाँ पे concentrated sulfuric acid, उसी को ही क्यों चूज़ करा रहे। एसिड लेना है किसी और को ले लो, नाइट्रिक एसिड को ले लो,
पर आप नहीं यूज़ कर भाई, HCl को तो लोगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी HCl आप बना रहे हो। तो यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को चूज़ करा, उसके पीछे भी सर्टन रूल्स है। पॉइंट इज़ दैट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई। ठीक है, ये दो बात हमेशा याद रखना। कॉन्सेंट सल्फ्यूरिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब समझते हो कि ईजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, और HCl जो गैस यहाँ बन रही है, देखो बाद में वो एसिड बनाएगा, ये तो फैक्ट है। जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये बेसिकली वॉलेटाइल हो जाता है। ठीक है, तो ये वॉलेटाइल इसका नेचर है HCl का, और सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर है नॉन वॉलेटाइल। तो दोनों क्या हैं, ये दोनों का जो नेचर है वो फ़र्क है। इसीलिए आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल होता है और वो ईजिली जो वॉलेटाइल एसिड है HCl को, इसको डिस्प्लेस कर सकता है सॉल्ट में से। दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड पॉइंट इसमें राइज होता है, वाई वी आर नॉट यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, है ना। यहाँ पे आपने कॉन्सेंट HNO3 क्यों नहीं ले रहे हो? पॉइंट इज़ दैट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो पॉइंट होता है वो वॉलेटाइल होता है। ठीक है, HCl भी वॉलेटाइल है, नाइट्रिक एसिड भी वॉलेटाइल है। तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, जब ये कंटेनर में तुम्हें HCl के साथ नाइट्रिक एसिड भी मिलने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी वेपर्स में ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, वो नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से वो ईजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। और नाइट्रिक एसिड क्या है, वो भी वॉलेटाइल है। HCl क्या है, वो भी वॉलेटाइल है। तो क्या है, वो ईजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज ओवर हियर, आई एम अगेन गोइंग बैक टू द रिएक्शन पार्ट, राइट। दिस इज़ द रिएक्शन। ठीक है, आपने देखा यहाँ दो रिएक्शंस है, दो तरीके के सॉल्ट्स मिल रहे हैं। वन इज़ द नॉर्मल सॉल्ट, अदर इज़ द एसिड सॉल्ट। द पॉइंट इज़ दैट टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर वाज लेस, दिस वाज द केस, द टेम्परेचर वाज लेस और इक्वल टू 200, देन यू आर गेटिंग एसिड सॉल्ट। ठीक है, एसिड सॉल्ट क्या है, बहुत सॉफ्ट होता है और ईजिली रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम टेम्परेचर लेस देन या इक्वल टू 200 ही यूज़ करें। अब पॉइंट क्या हो जाता है, टेम्परेचर मोर देन 200, अगर आप ये वाला रिएक्शन यूज़ करोगे तो इसमें सॉल्ट बनेगा। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इज देयर, नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट जो सोडियम सल्फेट बना है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल इज़ वेस्टेड। ठीक है, सेकेंड ग्लास एपरेटर्स जो हो जाता है वो क्रैक हो जाता है। एक्चुअली जो तुम्हारा कंटेनर था ना, फिर हम वापस चल रहे हैं डायग्राम पे ना, फोकस ऑन दिस डायग्राम। ये ना इसके अंदर ही तो बनेगा एसिड सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। अब सपोज़ करो अब टेम्परेचर आपने हाई रखा हुआ है और यहाँ पे क्या बना, नॉर्मल सॉल्ट बना हुआ है। जो सोडियम सल्फेट बनता है ये काफ़ी हार्ड होता है और ये कंटेनर के यहाँ साइडों में पूरा चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो एपरेटर्स हो जाता है वो क्रैक हो जाते हैं। तो हर बार अगर आपको निकालना है तो वो हार्ड क्रस्ट बना लेगा सोडियम सल्फेट यहाँ पे कंटेनर में, और आपका जो ग्लास है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको निकालने के लिए बाहर, क्योंकि ये बिल्कुल क्या हो जाता है, ये स्टिक हो जाता है ग्लास में और वो रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। एपरेटर्स आपके क्रैक हो जाते हैं और आपको हर बार अपना राउंड बॉटम प्लस HCl तो मिलेगी क्योंकि यहाँ पे भी मिल ही रही है, लेकिन क्या हो जाएगा, हर बार ये एपरेटर्स आपका ख़राब हो सकता है, टूट भी जाए। ठीक है, प्लस फ्यूल इज़ वेस्टेड, मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो बहुत बर्बाद होते हैं इसमें, और जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो भी बहुत यूज्ड होते हैं। तो वो इसीलिए हम ये जो सेकंड रिएक्शन है, जब टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हम वो प्रेफर नहीं करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखो यहाँ हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करा। ड्राइंग एजेंट्स तो आपने क्लास 9 में बहुत सारे पढ़े हैं। ठीक है, आपने है ना कैल्शियम ऑक्साइड भी पढ़ा हुआ है, आपने है ना फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी पढ़ा हुआ है ना, पर आप वो नहीं यूज़ कर रहे हैं ना। लेट्स फोकस ऑन इट। सो वी आर सीइंग ना, ड्राइंग एजेंट्स तो बहुत हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, बट वी आर प्रेफरिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, नॉट दीज टूज। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न that we are using concentrated sulfuric acid? Point is that तुम्हारी गैस, देखो तीनों का काम है कि they will remove moisture contains from the gas। अभी मैंने तो पीछे बताया था ना कि HCl गैस थी, उसके साथ क्या आ रहा था, मॉइस्चर भी आ रहा था। तो इनका खासियत क्या है, ये मॉइस्चर को रिमूव कर देंगे और आपके पास क्या मिलेगी, ड्राई HCl मिलेगी। लेकिन फिर भी इसको आप करने के लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। द पॉइंट इज दैट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल नॉट रिएक्ट विथ HCl गैस बिकॉज बोथ आर एसिड्स। तो दोनों एसिड्स हैं इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करेगा, पहली चीज़। अब यहाँ पॉइंट है कैल्शियम ऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब इन दोनों की क्या कहानी है, अब ध्यान से देखो। अगर आप क्विक लाइम लेते हैं यानी कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हो, है ना, अब ये दोनों जो हैं बेसिकली फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी और क्विक लाइम, ये दोनों रिएक्ट कर जाती है HCl से। अभी देख लो क्या करा, क्विक लाइम ने HCl के साथ रिएक्ट करा, इट गिव यू अ सॉल्ट
एंड वाटर, है ना भाई। ये एक ऑक्साइड है और ये आपका एसिड है, बेस की एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है आपको एक सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है भाई। सॉल्ट दिया उसने और आपका वाटर बना दिया, ठीक है। यहाँ तो रिएक्शन हो गया, तो आपको रिजल्ट मिलेगा HCl गैस? कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आप वो ले रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ले रहे हैं, वो भी HCl के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है और साथ में मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मैं नाम लिख दे रही हूँ, फॉस्फोरस ऑक्सीजन क्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ क्या बना रहा है? मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। बैलेंसिंग हम कर लेते हैं, देखते हैं कैसे हो पाएगी। 1 2 है ऑक्सीजन 5 सॉरी फॉस्फोरस 2 है, ठीक है। फॉस्फोरस आपका फिर यहाँ पे अभी बैलेंस नहीं होगा, लेट्स गो फोकस ऑन Cl। यहाँ 3 लगा के देखते हैं, 3 लगाया तो ये हो गया, लेकिन ये 3 बैलेंस नहीं है, तो आप कहाँ पे लगा लो अब दूसरा 3 यहाँ लगा लो इस पर। अभी भी बैलेंसिंग नहीं आ रही है हमारी सही, क्योंकि फॉस्फोरस 4 हो गए हैं, तो यहाँ पे पुट इट 2 हो गया। नाउ इट इज़ बैलेंस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन Cl सब बैलेंस हो गया। तो ये कंडीशन, तो बेसिकली व्हाट दे आर फॉर्मिंग योर रिस्पेक्टिव, देखो ये भी क्लोराइड फॉर्म बन रहा है, ये भी क्लोराइड फॉर्म बन रहा है, तो बेसिकली क्या हो जा रहा है, ये दे फॉर्म्स योर रिस्पेक्टिव क्लोराइड। सो क्या होगा? रिएक्शन हो गया, ये एसिड्स थे, है ना, ये रिएक्ट कर जा रहे हैं इनसे, इसीलिए हम इनको ड्राइंग एजेंट्स नहीं यूज़ करते। अब सेकंड पॉइंट, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है कलेक्शन। हाउ यू आर कलेक्टिंग, आई एम अगेन आई विल शो यू द दिस थिंग कलेक्शन ऑफ HCl गैस। हम आपको डायग्राम पे लेके चल रहे हैं वापस, वहाँ पे आपको सिखाएंगे कि हाउ यू विल सी हाउ द गैस इज़ बीन कलेक्टेड। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम, जस्ट सी जो पाइपलाइन आ रही है, डिलीवरी ट्यूब जो है आपकी, ये कहाँ से कनेक्टिविटी है? देखो यहाँ से कनेक्टिविटी, ऊपर से कनेक्टेड हो रही है, तो अपवर्ड। अगर यही नीचे से हो जाए तो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। ये कंटेनर क्या है? खाली है, बिल्कुल खाली है, लेकिन वैसे आपको खाली दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या है? क्या भरा हुआ है? एयर भरी हुई है। तो बेसिकली ये क्या डिस्प्लेसमेंट, हम लोग इस चीज़ को डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। ऊपर से डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है, अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंटेनर में ना पानी ना कुछ है, तो क्या लिखेंगे आप? ऑफ एयर। मैं आपको काफ़ी इसके दिखा देती हूँ तो आप समझ पाएंगे व्हाट आई वांट टू टेल यू। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आपके पास ये डायग्राम था कि डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है और गैस आपकी पास हो रही थी और इसके अंदर HCl आ रहा था, अंदर कंटेनर खाली है। देखो हम लोग वैसे बोलते हैं ग्लास ले आओ, है ना, और खाली ग्लास है, इट्स नेवर बी एम्प्टी बिकॉज इट्स ऑलवेज फिल्ड विद एयर। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट विच यू अंडरस्टैंड, बट वी ऑलवेज से इट इज़ एन एम्प्टी ग्लास. It's a wrong concept, but it's never empty because it's filled with air. So let's focus on it. It is filled with the air, and this thing, your gas was passed through this delivery tube and it's coming over here. The point is that जो डिलीवरी ट्यूब है वो ऊपर से प्लेस्ड है, इसीलिए इसको हमने क्या करा रखा है? अपवर्ड. मैं हर एंगल आपको समझाऊंगी कि आपको आगे याद रहे. अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या भरा हुआ है इसमें? एयर. नाउ लेट्स फोकस ऑन अदर थिंग, क्योंकि अपवर्ड का देख रहे हैं फिर हम डाउनवर्ड का भी देखेंगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसमें अब क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, तो ऑफ एयर की जगह आप क्या लगा लोगे? वाटर, राइट. दिस थिंग अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. नाउ लेट्स कम टू, यहाँ देखो डिलीवरी ट्यूब जो लगी हुई है वो नीचे से लगी हुई है ना, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. क्या भरा हुआ है कंटेनर में? एयर, ऑफ एयर. ये भी नीचे से लगी हुई है डिलीवरी ट्यूब, लेकिन किस में भरी हुई है? उसमें क्या भरा हुआ है? वाटर. ये भी क्या है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आ गई तुम लोग को? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट और अपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. इसमें कुछ कुछ कंक्लूजन्स भी होता है, वो हम अगली वीडियोस में देख लेंगे, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमें HCl में जो हमारी पॉइंट निकला था वो था हमारा अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. ठीक है, ये हमारा कलेक्शन है कि हाउ यू आर कलेक्टिंग योर HCl गैस, दैट इज़ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट. इसमें कुछ कुछ चीज़ें पता चलती हैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली देखो यहाँ पर जो आपका कंटेनर बना, आपने कंटेनर ऊपर से गैस को पास कर रहे हैं ना,
है ना, और यहाँ एयर भरा हुआ है कंटेनर में। ये कंडीशन थी आपकी। इसमें कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगी। पॉइंट इज़ दैट कि जब भी आप है ना इसको ऊपर से डालते हो और एयर की कंडीशन में आ रहे हो, इसका मतलब जो गैस आ रही है आपकी वो एयर से ज़्यादा हैवी होगी, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। देखो जो एयर है ना, यहाँ पे हम लोग इनकी ना वेपर डेंसिटी को देखते हैं। एयर की जो वेपर डेंसिटी की वैल्यू है वो करीबन 14.4 होती है, ठीक है, ठीक। और HCl की जो वेपर डेंसिटी VD लिख रही हूँ मैं, इट इज़ अबाउट 18.25 होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जब तुम एयर जो HCl को यहाँ पास करोगे तो HCl क्योंकि वो भारी है तो वो क्या हो जाएगी, वो नीचे बैठी रहेगी, वो उड़ेगी नहीं। मतलब HCl तुम्हारी यहाँ आ जाएगी और एयर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि HCl भारी। कभी आपने अपने माउथ से बैलून फुलाया होगा ना, उसमें कौन सी गैस होती है, CO2। आप कितना भी उसको पुश करो थोड़ी देर जब तक तुम उछालते हो उसके बाद वो नीचे बैठ जाता है बैलून में, अगर आपने याद हो। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आपको याद रहे। तो इसमें क्या भरा हुआ था, CO2। आप कितना भी इसको उछालते हो वो एक टाइम आता है वो नीचे ही आ जाता है। क्यों, क्या शो कर रहा है कि CO2 गैस जो है वो एयर से हैवियर है, इसीलिए वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगी। यही कंडीशन यहाँ पे है। HCl जो है देखो कितने टाइम्स कितना ज़्यादा भारी है एयर की वेपर डेंसिटी की इन दोनों की डेंसिटीज, वेपर डेंसिटीज कंपेयर करो तो ये भारी है उससे। तो क्या हो जाएगा, HCl जो है नीचे आ जाएगी, एयर जो है ऊपर आ जाएगी। ये कंडीशन है। इससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है, अपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम ये जान पा रहे हैं कि जो HCl गैस है इट इज़ हैवियर देन एयर, ठीक है। हाउ मच हैवियर, इट्स 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर। एक पॉइंट तो आपको इस कंडीशन, इस डायग्राम से ये कंक्लूजन मिला। दूसरा पॉइंट आता है, देखो यहाँ पे एयर भरी हुई, यू आर नॉट यूजिंग वाटर, यू कुड यूज इट वाटर, वाई वी आर नॉट यूजिंग वाटर ओवर हियर, दैट इज अगेन अ सेकेंड पॉइंट ऑफ योर रीजनिंग क्वेश्चन। वी आर नॉट यूजिंग वाटर बिकॉज HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। HCl क्या है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। और ये याद रखना, अगर एक वॉल्यूम वाटर का आप लोगे उसमें करीबन आप 452 वॉल्यूम HCl आप डिज़ोल्व कर सकते हो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। यानी अगर पानी का कंटेनर लोगे और उसमें अगर HCl आप पास करोगे, आपको बिना मेहनत करे वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी। यानी एक वॉल्यूम अगर पानी का लोगे तो उसमें आप कितना डिज़ोल्व कर सकते हो, 452 वॉल्यूम HCl के। देख रहे हो how much it is soluble in water, that's why we are not using water over here, we are using air। क्लियर होगी सबको मेरी बातें। सो दैट इज़ द पॉइंट विच वी हैव कवर अप एंड दिस इज़ द लैब मेथड। इसमें लैब मेथड्स में डायग्राम जल्दी में बनाने नहीं आते हैं। और रिएक्शंस हैं भाई, आपका जो है रिएक्टेंट्स के नेम पूछे जाते हैं, नेम द रिएक्टेंट्स, नेम द व्हाट गैस इज़ बीन ऑब्टेन, व्हाट इज़ द कलेक्शन मेथड, है ना। एक दो चीज़ें और इसमें रह गई हैं जो हमारे कोर्स में है। इसमें प्योरीफिकेशन हमने देख ही लिया कि आप कैसे प्योरीफाई कर रहे हैं, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने, मैंने इसमें डिटेलिंग सब कवर कर लिए। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बची हैं, वो है आपका पॉइंट है प्रिकॉशन का। प्रिकॉशन थोड़ा लेना चाहिए कि रिएक्शन, जब आप रिएक्शन मिक्सचर को इनिशियली हीट करिए तो धीरे धीरे हीट करिए, क्योंकि HCl बहुत जल्दी जल्दी निकलती है, ठीक है, बहुत तेज़ी से निकलती है। तो ऐसा ना हो कि आप यूज़ कर रहे हो और है ना वो एक्सकेप आउट हो जाए। प्लस जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जब हमने अपना एपरेटस रखा था तो थिसल फनल हमने यूज़ करा था ना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने के लिए। नहीं है तो दिखा देते हैं। ये थिसल फनल है, ये थिसल फनल है ना डिप्ट होना चाहिए ना, नीचे रहना चाहिए। ये पूरा इसमें जो आपके सॉल्यूशन है ये पूरा ऊपर तक भरा हो, जैसे ये डिप्ट है अंदर, ठीक है, यहाँ तक भरा हो और ये तभी अंदर डिप्ट हो। ऐसे में ही होगा। देखो अगर ऊपर रहेगा तो HCl गैस जो निकलेगी वो एक्सकेप्ड आउट हो जाएगी। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ऊपर से तो खुला ही होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा ये डिप्ट रहेगा तो वो ईजिली रहेगा, तो आपकी चीज़ें जो है लॉस ना हो आपका HCl गैस का। फिर एक और चीज़ बच जाती है इसमें, आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर देखो कंटेनर है, HCl गैस है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये HCl ही बन रहा है? ऐसा तो हो सकता है पता चला कुछ और भी हो जाए। तो इसका एक टेस्ट होता है जो हम करते हैं। हम यहाँ से ही एक ग्लास रॉड लेके आते हैं और इसके माउथ पे रख देते हैं। वो ग्लास रॉड जो होती है वो अमोनिया जो सोल्यूशन होता है उससे डिप्ट करी जाती है, ठीक है। तो जैसे ही तुम अमोनिया सोल्यूशन के साथ HCl कंबाइंड करेगा वो NH4Cl दे देगा, अभी बता रहे हैं, ठीक है।
तो अगर आप अमोनिया गैस को लेके आएंगे, मतलब अमोनिया सॉरी सोल्यूशन को ग्लास रॉड में डिप करके लाएंगे, HCl तो उस कंटेनर में है ही है, तो वहाँ से तुम्हें उस ग्लास रॉड में वाइट डेंस फ्यूम दिखेंगी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, ठीक है। ये आपका है, तो डेंस वाइट फ्यूम मिल जाएगी अमोनियम क्लोराइड का। देखो बहुत ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में 10 ईयर्स में देखोगे ये बहुत बार ये रिएक्शन पूछा गया, ऑब्जर्वेशन पूछा गया, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद HCl गैस, सो यू शुड गिव द आंसर द डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज बीन फॉर्म, ठीक है। बाद में यही कंडेंस हो जाती है, तो ये फ्यूम्स जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। सो वी हैव कवर्ड द एंटायर लैब मेथड ऑफ दिस थिंग HCl gas, and in the next videos we will see the other methods also, the other points of lab methods and other properties, physical properties, chemical properties, we'll see to it.